یونان کشتی حادثے میں مرنے والوں کے ڈی این اے ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے اور ذرائع نے بتایا یونانی حکومت کو پاکستان سے ڈی این اے رپورٹس کا انتظار ہے۔ میتیں اگلے ہفتے خصوصی طیارے کے ذریعے ایتھنز سے پاکستان روانہ کی جائیں گی۔ ایتھنز کشتی حادثے میں اب تک 82 تارکین وطن کی ڈیڈ باڈیز نکالی جا چکی ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے، یونان کشتی حادثے میں مرنے والوں کے ڈی این اے ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال نے ریمارکس میں کہا، اگر کوئی سویلین کسی فوجی کو بغاوت پر اکسائے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے۔ دیکھنا ہوگا سویلینز کو فوجی عدالتوں کے دائرے اختیار میں لانے کا کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ یہ کہنا کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا درست نہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ دیکھنا ہوگا انسداد دہشت گردی عدالت نے کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالت کو منتقل کیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے کیس میں چیف جسٹس عمر تا بندیال کے اہم ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار افراد کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 141 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ایم پی او کے تحت 117 افراد تحویل میں لیے گئے۔ 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں، جبکہ فوج کی تحویل میں کوئی صحافی، وکیل، خاتون یا کم عمر ملزم نہیں ہے۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم نے درخواست میں آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ سویلینز کے آرمی عدالت میں ٹرائل ہوتے رہے ہیں۔ میں نے تحریری معروضات بھی جمع کرا دی ہیں۔ میرا موقف صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مخصوص سویلینز کا ٹرائل خلاف آئین ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ قانوناً فوج سویلین کی حوالگی کا کہتی ہے تو ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجا جاتا ہے۔ فوج چارج کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سول عدالت میں چلے گا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ سول ٹرائل چل رہا ہے تو کیا فوج اس کی حوالگی کا کہہ سکتی ہے؟ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ فوج سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مائنڈ اپلائی کیے بغیر از خود نوٹس لیں گے اور نہ ہی جوڈیشل آرڈر کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ اس کیس کا نتیجہ منگل تک نکل آئے۔ کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت سے الگ ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر 30 صفحات کا الگ نوٹ جاری کیا، تاہم یہ نوٹ کچھ دیر بعد ہی ویب سائٹ سے ہٹایا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹ میں کہا گیا تھا کہ جب سے میری تعیناتی عدالت عظمیٰ میں ہوئی تب سے آج تک کبھی کسی مقدمے کی سماعت سے گریز نہیں کیا۔ ہمیشہ کوشش رہی کہ مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں۔ ہمیشہ کوشش رہی کہ ہر فیصلہ ایک ہی پیمانے سے آئین و قانون کے مطابق کروں۔ نوٹ میں کہا گیا تھا کہ پوری صراحت سے کہتا ہوں، سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے خود کو دستبردار نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا۔ اب اگر میں یہ مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی و قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نگران سیٹ اپ کے قیام اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ نواز شریف کی آئندہ ماہ وطن واپسی متوقع ہے۔ سابق وزیر اعظم کی لیگل ٹیم نے بھی عندیہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کی ٹیموں میں مذاکرات جاری ہیں۔ لندن میں ایون فیلڈ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا، چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں۔ مالیاتی اداروں اور فرانس کے صدر سے ملاقات اچھی رہی۔ ملاقات ہوئی تھی ایم ڈی آئی ایم ایف سے اور ان سے بڑی فرینک گفتگو ہوئی اور ان سے میں نے یہی کہا کہ ہم نے تمام شرائط جو آئی ایم ایف کی ہیں وہ پوری کر دی ہیں اور اب جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا وہ اب بورڈ میں جا کر اس کو منظور ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری ٹیم میں یعنی پاکستان کی ٹیم اور آئی ایم ایف کی ٹیم فوری بیٹھ جائے، کچھ تھوڑے بہت اگر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے۔ جلد ہو جائے گا یہ تو اب اس وقت گفتگو جاری ہے۔ منسٹر آف فائنانس اسحاق ڈار صاحب ان کی ٹیم اس کو لیڈ کر رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم اور آئی ایم ایف کی ٹیم ہے، اور میرا بھی رابطہ
बराबर रब्ता है इसहाक डार साहब से, तो आप दुआ करें कि अब ये IMF का प्रोग्राम जो है उनका बोर्ड मंजूर करके हम आगे चलें। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अमरीकी कांग्रेस का दौरा किया। अमरीकी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें की। सफ़ीर पाकिस्तान सरदार मसूद खान और रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अमरीकी कांग्रेस के दौरे के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी भारतीय प्रोपेगेंडे पर कांग्रेस अरकान को आगाही दी। पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार मसूद खान और रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ भी मौजूद थे। आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान के लिए लॉबिंग और मौजूदा सियासी हालात पर अरकान से तबादला ख्याल किया। दौरे फ्रांस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, नहायत कठिन फैसलों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार था। 1 साल की मुसलसल मेहनत से खारजा ताल्लुकात बहाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली में इकनॉमिक रिवाइवल प्लान संगे मील साबित होगा। सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी है। मुलाकात के दौरान वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वतन की तरक्की के लिए खिदमात को सराहा और कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर और कीमती असासा हैं। ये लोग पाकिस्तान की लाइफ लाइन है जो मेहनत करके ज़र मुबादला वतन भेजकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी नौमे के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करें। उस रोज़ शरपसंद अनासर ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से नेशनल पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया। भक्कर से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अफजल ढांडला ने भी मरियम नवाज से मुलाकात की। हसन रजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। साबिक सेनेटर कबीर अहमद, सेनेटर ताहिर बजिंजो, सेनेटर अकरम और अयूब मलिक भी वफ़द में शामिल थे। मरियम नवाज ने वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान और उसकी आवाम को नहायत अहमियत देते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। बक्कर से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अफजल ढांडला की भी मरियम नवाज से मुलाकात हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी में सियासी तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क में मुआशी एमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं है। इंतखाबात अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला का कहना था वर्ल्ड बैंक के ताउन से मंसूबे पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए। मंसूबा इब्राहिम हैदरी के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था हाफिज नईमुर रहमान ने जमान पार्क जाकर बड़ी गलती कर दी। अगर हाफिज नईमुर रहमान जमान पार्क नहीं जाते तो शायद PTI वाले वोट दे देते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। सूबाई और कौमी असम्बलियाँ 13 अगस्त को अज खुद खत्म हो जाएंगी, जिसको आगे बढ़ाने का कोई भी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पुलिस के अफसरों और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कच्चे के इलाके में पहुँच गए। मोहसिन नकवी कहते हैं कि शरपसंद अनासर को दोबारा कदम नहीं जमाने देंगे। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने रहीम यार खां में शरपसंदों से क्लियर कराए गए कच्चे के इलाकों का दौरा किया और अगले मोर्चों पर तैनात पुलिस के जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी, IG पंजाब पुलिस और दीगर ने जवानों के साथ मिलकर खाना खाया। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाके में कायम पुलिस चौकी, आरजी डिस्पेंसरी और स्कूल का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी बुनियादी मरकज सेहत गड़ी खैर भी गए और सेंटर में सेहत आमा की सहूलतों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने शरपसंदों से क्लियर कराए गए कच्चे के इलाके में स्कूल और अस्पताल के क्याम का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। शरपसंद अनासर को कच्चे के इलाके में दोबारा पनपने नहीं देंगे। इस मौका पर ब्रीफिंग में IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि अब कच्चा में कोई नो गो एरिया मौजूद नहीं है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई में किसी सूरत कमी नहीं आ रही। एक हफ्ते के दौरान 0.33% का मजीद इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34% से तजावुज कर गई है।
महंगाई बेलगाम, हफ्तावार बुनियादों पर 0.33% का मजीद इजाफा, सालाना शरह 34.05% रिकॉर्ड, 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 के निर्खों में कमी। इदारे शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 125 रुपए महंगा हुआ, आलू 2 रुपए, चीनी 3 रुपए, जिंदा मुर्गी 5 रुपए और गोश्त की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दाल, माश, दूध, अंडे, दही, चावल और लहसुन के दाम भी बढ़ गए। टमाटर, प्याज और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी आई। LPG का 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 115 रुपए सस्ता हुआ। इदारे शुमारियात के आदादो शुमार के मुताबिक हालिया हफ्ते में 19 अशिया जरूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। खूबसूरत बकरे, तनोमंद बैल, सेहतमंद गाय, मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर, लेकिन कीमतें ऐसे ही के सुनते ही आसान खता हो जाएं। जानवर तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन कीमतें खरीदारों को मायूस कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। की बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में ढोलू, भोलू, बादल, बादशाह और शेरू की धूम। डबल शेड वाले ढोलू और भोलू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मंडी का रुख करने वाले ग्राहक बैलों की इस जोड़ी के हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। कीमत की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। मालिक 25 लाख से कम डिमांड नहीं करता। घी डालते हैं सर्दी में, जब गर्मी आती है फिर सरसों का तेल इनको खिलाते हैं, और उसके बाद फिर ये आटा और सूखे टुकड़े वो खिलाते हैं। मंडी में जहां ढोलू और भोलू ने अपनी खूबसूरती से सबको जकड़ा हुआ है, तो वहीं बादल और बादशाह का राज भी बरकरार है। भारी भरकम सफेद और काले रंग के बकरों ने अपने कद काठ की वजह से मंडी में सबको पीछे छोड़ दिया है। देसी खुराक इनको दी जाती है, उससे ये तैयार होते हैं। गंदम, मकई, बाजरा वगैरह, उसके अलावा दूध और मक्खन वगैरह भी इनको दिया जाता है। 50 लाख हम मांग रहे हैं, 35 लाख लगा, हमने नहीं दिए, तकरीबन 40 में हम दे देंगे इनको। मवेशी मंडी में शेरू के ठाट पाट भी किसी से कम नहीं। गर्मी की शदीद लहर में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में 8 से 10 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुंच गया। रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी में बिजली का तकसीमी निजाम भी जवाब देने लगा। मुल्क भर में 8 से 10 घंटों तक की लोड शेडिंग जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट और तलब 27,000 मेगावाट है। मुल्क में पन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 520 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 7,000 मेगावाट है और विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1,225 मेगावाट है। सोलर बिजली घरों से 120 मेगावाट और बिगास से 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,270 मेगावाट है। शिमाली इलाकों में गर्मी की शदीद लहर के बायस ग्लेशियर्स फटने का खदशा पैदा हो गया। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की सूरत में दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। जीशान यूसुफजई की रिपोर्ट। के शिमाली इलाकाजात में गर्मी की शदीद लहर, नदी नालों में तुग़यानी, दरियाई सिंध के बहाव में गैर मामूली इजाफा, बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर फटने का खदशा पैदा हो गया। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक ग्लेशियर्स पिघलने के बायस शमशाल वैली, गांचे, पिस्सू और स्कर्दू से मुल्हिका इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की कैफियत है। दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से बढ़ चुका है। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने से दरियाई सिंध का बहाव 3.5 लाख क्यूसिक तक जा सकता है।